तो माने এইটো কমজুৰি বনাইছে সিমেন্ট নাই पूरा सिक्योरिटी पर्पस तो सब गले ए सब पूरा भांगी গৈছে खाली बाली আছে खाली बाली মানে তো ভৰি কি মানুহ নিজে ঘুমাই যাব যিখিনি গাঁত হৈছে ইয়াত কি কোনো ইনস্পেকশন হোৱা নাই নেকি প্ৰপাৰ ইনস্পেকশন হোৱা নাই যেন লাগিছে মোৰ এজন মানে সিটিজেন আমি এটো বিচাৰো যে এটো এটা ইনভেস্টিগেशन हुआ हाल ही बने हुए इसे देख के तो मुझे लग ही रहा था जब ये बन रहा था कि बहुत कमजोर बना है ये। तो वही बात है, नहीं मालूम कैसे हो रहा है, सरकार क्या काम कर रही है। से मालूम है कोने भांगी কোনে ভাঙিছে এতিয়া কেনে কনসেকুৱেন্স সিসিটিভি কেমেৰা ওলাব মোৰ নাম মানৱজ্যোতি মৰাণ আৰু কালি ৰাতি মই ডিউটি কৰি থাকোঁতে দেখিলোঁ যে ইয়াত গাঁত হৈ আছে কাৰণে মানুহ ভৰি নাযাবৰ কাৰণে এডাল দি দিলোঁ মই বিশেষকৈ একো নাজানো খালি এটি গাড়ী অহা যোৱা পায় তো সেইকাৰণে গাঁত হৈ গ'ল ইয়াত কিবা ট্ৰাক উঠিছিলে নেকি, ডাঙৰ কিবা গাড়ী উঠিছিলে? ডাঙৰ গাড়ী সেনেকৈ উঠা নাই, সৰু গাড়ী অহা যোৱা কৰে। তো এই মানে কেনেকুৱা পৰিলে যিটো আমি এইটো দেখা পাইছোঁ এই গাঁতটো ইমান ডাঙৰ এখন গাঁত হৈ গ'ল, এই গাঁতটো কেনেকুৱা মানে তোমাক কি লাগি আছে এইটো গাঁতটো কেনেকুৱা হৈছে, কি কাৰণে হৈছে? তো মানে এইটো কমজুৰি বনাইছে সিমেন্ট নাই দিয়া। নমস্কাৰ মোৰ নাম এডভোকেট মাম্পি দত্ত চৌধুৰী মই ইয়াত ওচৰতে থাকো 7 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ আপোনাৰ আজি এতিয়া মই কোৰ্টলৈ যাবলৈ আহোতে একদম নতুনকে নিৰ্মাণ হোৱা এটা কালভাৰ্ট ভাঙি পৰি আছে তাৰপিছত নিজে চালো আহি ওচৰ কেজনো আছে মোৰ লগত চাব আহি যে ইমানে লো কোৱালিটিৰ কনষ্ট্ৰাকচন হৈছে যে 10 mm বদলি এইটো 8 mm ৰড ওপৰৰ পৰা পুৰা উঠি উঠি গৈ আছে আপোনালোক চাব পাৰে চক এনেকৈ উঠি উঠি গৈছে এই এতিয়াই ভাঙি গৈছে এইটো 15-20 দিন আগত বনোৱা শুকুৱাই নাই গোটেই আৰু এনেকৈ তো ইয়াত পুৰা সিকিউৰিটি पर्पस তো চাব গলে এই চক পুৰা ভাঙি গৈছে খালি বালি আছে খালি বালি ইয়াত কি কোনো ইনস্পেকশন হোৱা নাই নেকি প্ৰপাৰ ইনস্পেকশন হোৱা নাই যেন লাগিছে মোৰ বিভাগীয় যিকেইজন অফিচাৰ্ছ আছে তেওঁলোক কি ইনস্পেক্ট কৰাই নাই নেকি চক আজি 15 দিন আগত বনোৱা ৰাস্তাটো দুৰ্গতি কবই নালাগে আমি ইমান কষ্ট পাইছো লগত এই অৱস্থা কালভাৰ্টৰ গোটেই কালভাৰ্টৰ ওপৰেদি এই গাড়ী যায় কিমান গাড়ী উঠে এতিয়া কালি বলে শুনিলো গধূলি এটা ছোটা হাতী উঠতেই যদি ভাঙি যায় তো ডাঙৰ গাড়ী উঠিলে কি হ'ব এইকাৰণে মানে প্ৰপাৰ অফিচাৰ্ছ আহি যদি অকমান ইনস্পেকশন কৰি লয় বস্তুটো ভাল হয় যেনেকুৱা মানে ফুটপাথ ইজ এ ভেৰি এসেনশিয়াল পাৰ্ট মানে মানুহ খোজকাঢ়ি অহা যোৱাৰ কাৰণে যদি এনেকুৱা ভাঙি যায় মানুহ ভৰিটো সোমাই যায় সোমাই গৈ বাচ্চা সোমালেতো ভৰি কি মানুহ নিজেই সোমাই যাব যিখিনি গাঁত হৈছে ইয়াত এইটো আপুনি এটা হাই লেভেল ইনভেষ্টিগেশ্যন বিচাৰে নে? নিশ্চয় বিচাৰো এজন মানে সিটিজেন আমি এইটো বিচাৰো যে এইটো এটা ইনভেষ্টিগেশ্যন আৰু আপুনি নিজে চাওক এইখিনি কালভাৰ্ট পুৰা শুকাই গ'ল এইখিনি আজি ইমান দিনৰ এতিয়াও কেঁচা হৈ আছে কিয় আপুনি ভাঙিছে মানুহে কোনে ভাঙিছে? কোনে ভাঙিছে এতিয়া কেনে কনসেকুৱেন্স সিসিটিভি কেমেৰা ওলাব এইটো চিচিটিভি কেমেৰাটো ওলাব না মানে আপোনাক কোৱা মানে কোনোবা সেইটো নিজাকে ভাঙিছে ভাঙিছে আচ্ছা এইটো মানে কাম আপুনি মেচিন লগাই দিছে ভাঙি চাওক যদি ভাঙে ইয়াত কামৰ কোৱালিটি কোনো অসুবিধা নাই हां ये काम तो ठीक है देखिए আছে ठीक है नमस्ते दर्शकों, मैं मौजूद हूँ तिनसुकिया शहर के पर्वतीय स्थित गोकुल धाम के बाहर। हमें खबर मिली कि यहाँ ड्रेन का हिस्सा एक छोटा सा हिस्सा टूट के धंस गया है। जी हाँ, ये वही ड्रेन है जो 15-20 दिन पहले बनाया गया था और बहुत आश्चर्य की बात है कि ये ड्रेन का एक बड़ा हिस्सा टूट के अंदर धंस गया है। अगर हम आपको दिखाएं यहाँ गिट्टी बालू अलग हो चुकी है। देखकर कोई भी कह सकता है कि यहाँ पे ये मसाला बहुत ही निम्न स्तर का मसाला दिया गया है। जो ढलाई का मसाला इस्तेमाल किया गया है बहुत निम्न स्तर का मसाला दिया गया है। ये दुकान है, मैं सुबह जब आया तो मैंने देखा कि इधर में ये टूटी पड़ी है तो मैं भी देख के मैं शॉक्ड हो गया कि ये कैसे टूटी हुई है। अभी 15-20 दिन ही हुआ हाल ही बने हुए इसे देख के तो मुझे लग ही रहा था जब ये बन रहा था कि बहुत कमजोर बना है ये। तो वही बात है, नहीं मालूम कैसे हो रहा है, सरकार क्या काम कर रही है। ऐसे होगा तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कल को चलो आज तो अच्छा है कि इसमें कोई गाड़ी नहीं घुसी, कल को कोई गाड़ी घुस जाती तो और दिक्कत हो जाती। तो आप जो देख रहे हैं आपको क्या लग रहा है कि ऐसे नया बना हुआ ड्रेन का एक हिस्सा कैसे टूट सकता है? मुझे भी समझ में नहीं आया ये कैसे हुआ, पर ये ठीक नहीं लग रहा है मुझे भी। ये कमजोर काफी लग रहा है ये, मतलब जिस हिसाब से बनना चाहिए था उस हिसाब से नहीं बन रहा है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट डेवलप विकास का काम कर रही है तो अगर ये काम 15 दिन जैसा आप बोल रहे कि 15-20 दिन पहले ये बना है और टूट गया एक हिस्सा
तो क्या आपको क्या चिंता है कि ये आगे के दिनों में, और ये इतना लंबा ड्रेन है लगभग 2 किलोमीटर, तो आपको इसकी क्वालिटी को लेके आपको क्या चिंता है, और आप क्या इस पे कोई जांच आप चाहते हैं कि इस पे कोई उच्च स्तरीय जांच हो? हाँ, मैं चाहता हूँ कि इस पे कुछ उचित तरीके का जांच हो। बता दें, जब हमने पीडब्ल्यूडी रोड एसडीओ जी सोनवाल से बात की तो उन्होंने हमें बताया था कि स्लैब पे 12 और 10 mm के रॉड दिया गया है, मगर यह जमीनी हकीकत आप देख सकते हैं, ये 8 mm का रॉड है। मैं कैमरामैन से कहूंगा वो सामने आकर दिखाएं, ये 8 mm का यहाँ रॉड दिया गया है, जबकि पीडब्ल्यूडी रोड्स के एसडीओ जी सोनवाल ने साफ शब्दों ने हमें अपने इंटरव्यू में बताया गया था कि स्लैब पर 12 और 10 mm के रॉड दिए गए। आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ निम्न स्तर की ढलाई तक सीमित नहीं है, यहाँ तो पूरा बड़ा घोटाला करप्शन हुआ है। और जाहिर सी बात है, विभाग के अधिकारी आंख मूंदे बैठे थे, तभी ठेकेदार में ये साहस हुआ है कि वो इस निम्न स्तर का काम करे। रॉड में चोरी से लेकर ढलाई में घपला, जो कुछ है आपके समक्ष है। दर्शकों, हमने पर्वतिया ड्रेन प्रोजेक्ट को लेकर सिलसिलेवार तरीके से यहाँ हो रही घपले का खुलासा किया था। पहले रॉड में चोरी, रॉड की साइज में चोरी, फिर ढलाई में कमी को उजागर किया था। अब इसके बाद ठीक जिस जगह हमने रॉड का खेल दिखाया था, उससे महज 300 मीटर की दूरी पर यह ड्रेन का एक हिस्सा टूट गया है, धंस गया है। हमने यहाँ ऑन ड्यूटी चौकीदार से बात की, गोकुलधाम के चौकीदार से बात की, जानने की कोशिश की क्या कोई ट्रक या हैवी ड्यूटी व्हीकल इस पे चढ़ने से ऐसा हुआ है। उसका कहना था ना, ऐसा कोई हैवी ड्यूटी व्हीकल यहाँ पे इस पे नहीं चढ़ा है। बावजूद उसके अगर ये ड्रेन का हिस्सा बैठ जाता है 15 दिन में, तो ये बहुत अहम सवाल उठा रहे हैं यहाँ जो काम हुआ है उसको लेकर। इस सवाल सिर्फ काम में निम्न स्तर का नहीं है, बल्कि इस काम में करोड़ों के काम में है। 8 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में करप्शन की ओर इशारा कर रहा है। विभाग की जिम्मेदारी थी कि जब वो काम हो तो वो ये देखे कि जो क्वालिटी टेंडर में दिया गया है वो क्वालिटी मेंटेन रहे, मगर इसे देखकर कोई भी कह सकता है कि ये निम्न स्तर का काम हुआ है। आप देख सकते हैं ये बालू ये अलग हो रही है, ये देख सकिए, ये इस तरीके से ये परत खुल रही है। ये देखिए, क्या ये ढलाई की परत हाथ से ऐसे खुल सकती है? ये मैं कैमरामैन से विनती करूंगा कि वो यहां दिखाए। सवाल यहां पर, कैमरामैन मेरी तरफ दिखाए, सवाल यहां पर ये टैक्स पेयर के पैसों का है, क्योंकि ये ड्रेन का निर्माण टैक्स पेयर के पैसों से की जा रही है। बीजेपी सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है ताकि शहर का विकास हो सके, मगर अगर आप जमीनी हकीकत देखें तो ये जो पर्वतिया में जो ड्रेन का काम हो रहा है, ये पूरे विकास के काम के ऊपर सवाल उठा रहा है। अगर 15 दिन में ड्रेन का एक हिस्सा इस तरीके से टूट के गिर जाता है, धंस जाता है, तो कल्पना कीजिए आने वाले समय में ये ड्रेन का किस जगह ये ड्रेन टूट के गिर जाएगी, और 1-1.5 साल बाद तो शायद ही कोई पूछने वाला होगा, क्योंकि तब तक बिल का भुगतान भी हो जाएगा। हम आशा करते हैं जो मोजो न्यूज के खुलासे के बाद जिला उपायुक्त ने जो मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए थे, वो जांच दल इस चीज को भी देखे और इसे अपना जांच का विषय बनाए, जांच में शामिल करें, और ये जांच सिर्फ पन्नों तक सीमित नहीं रहे। इस जांच में लोगों को हकीकत पता चलना चाहिए कि आखिर क्या हुआ है और इसमें कौन कौन दोषी है। ठेकेदार से लेकर विभाग के वो अधिकारी जिनका इसमें रोल था, आखिर उन्होंने क्या किया है, ये सच लोगों के सामने आना ही चाहिए। मोजो न्यूज की तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं विकास के काम में हो रहे घपले को उजागर कर सके, ताकि सरकार इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करे। न्यूज की तरफ से मैं ऋषु कलंत्री, देखते रहिए मोजो न्यूज।